Hello everyone, myself Professor Priyanka Lote. Today we will start our part 2 of 4 chapter curve setting. Today's lecture we will try to cover the notation of simple circular curve, then relation between degree of curve and its radius and method of setting out simple circular curve. Okay. So let us start with the notation used with simple circular curve. Okay? हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में सर्कुलर कर्व्स के टाइप्स देखे हैं. अभी सिंपल सर्कुलर कर्व को कंसीडर करके उसके कंपोनेंट पार्ट्स को डिनोट किया है. ओके और वही नोटेशन हम लोग को देख के आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. ओके मतलब हर एक पॉइंट को, बिकॉज ये जो सर्कुलर कर्व है जब भी अलाइनमेंट चेंज होता है तभी हम लोग को ये कर्व जो है वो रोड पे हम लोग को सेट करना पड़ता है. तो वो कैसे सेट करना है, पहले तो उसके कंपोनेंट्स देखने हैं एंड उसके वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं विथ डिफरेंट मेथड्स. तो हम लोग को डेरिवेशंस देखने एंड देन हम लोग को उसका कैलकुलेशन करना है. तो फर्स्ट हम लोग नोटेशन देखते हैं वन बाय वन. First point, the AB and BC are known as a tangent to the curve. Okay, actually this is a curve. Okay, ये curve हम लोग ने suppose road पे provide किया है and with the help of these curves and tangent हम लोग सभी components देखेंगे. So AB and BC is a tangent of curve. Next point, B is known as the point of intersection or the vertex. जो दोनों टेंजेंट को ज्वाइन करने वाला पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन और द वर्टेक्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वर्टेक्स. नाउ थर्ड पॉइंट, द एंगल फाई इज नोन एज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन. फोर्थ पॉइंट, द एंगल आई इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन. मीन्स the angle between both tangent point is called as the angle of intersection. Fifth point, the point T1 and T2 are known tangent point. This T1 and T2 are known tangent point. Then distances BT1 and BT2 are known as a tangent length. Next point, seventh one, when the curve deflects to the right, it called as a right hand curve. When it deflects to the left, is called as a left hand curve. Means अभी ये जो एग्जाम्पल है ये राइट साइड पे डिफ्लेक्ट हुआ है तो ये कर्व को बोलेंगे हम लोग राइट साइड कर्व. अगर यही लेफ्ट साइड पे हो गया यहाँ पे तो ये होगा लेफ्ट हैंड कर्व. नाउ 8 पॉइंट, AB is called as a rear tangent and BC is called as a forward tangent. Tangent हम लोग ने देखे AB and BC, ये बोथ tangent है. ओके सो AB जो tangent है उससे बोलते हैं rear tangent and BC जो है उससे बोलते हैं forward tangent. Then ninth one, the straight line TE and T2 is known as long chord. This is called as a long chord or it is denoted by L. Now, the midpoint, the curve line T1 F T2 is said to be length of curve. Okay, this length is called as a length of curve. Now, next, the midpoint of F of the curve T1 F T2 is known as the apex or the summit of the curve. This F point is called as a summit of the curve or apex point. Okay. The distance BE is known as the apex distance. This distance BE. Okay. This is called as apex distance or external distance. Now 13 point. The distance EF is called as a verse side, okay, of the curve. Distance EF. This is also called as the mid offset. Okay, means हम लोग जब भी offset of from long chord method देखेंगे तभी यही होगा mid point offset. अभी उसको क्या बोलते हैं, verse side of curve.
Now R is a radius of curve. This R is called as a radius of curve. फिर यहाँ पे O T1, O F, O T2 ये सब क्या है? रेडियस है. ठीक, ये सब क्या हुआ है जो मैंने अभी ड्रॉ की, ये सब रेडियस पॉइंट है. नाउ एंगल T1, O and T2 is equal to the deflection angle. Angle T1, O, T2 is called as a deflection angle. Means this angle is called as a deflection angle or degree of curve. Now the point T1 is known as the beginning of curve or the point of curve. This T1 is called as the beginning of curve, okay, or the point of curve, and this T2 is called as the end of curve, is known as a point of tangency. End of curve is known as point of tangency, or it can say the initial tangent point or the end tangent point. okay? ये सब क्या हुआ है? नोटेशन हुआ है. वो नोटेशन हम लोग को भी याद रखने हैं. अभी नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ कर्व एंड इट्स रेडियस. मीन्स ये जो पॉइंट है डिग्री एंड रेडियस, ये जो रेडियस है उसका रिलेशन क्या है. जब भी हम लोग को रेडियस फाइंड करना है या डिग्री फाइंड करना है तो दोनों का यूज़ करके हम लोग रेडियस एंड डिग्री ऑफ कर्व के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. So let R is a radius of curve in meter. This is simple circular curve. This is length of curve, and this is radius, and this is long chord of curve. Okay. So let the R is a radius of curve in meter. Then D is a degree of curve. This D is a degree of curve. MN is a long chord. Let us say 30 मीटर लॉन्ग. ओके, बिकॉज हम लोग का चेन होता है 30 मीटर का. देन P इज अ मिड पॉइंट ऑफ लॉन्ग कॉर्ड. ओके, P क्या है? मिड पॉइंट है. नेक्स्ट, नाउ कंसीडर ट्रायंगल OMP. ओके, OM क्या है? R है. OM R है. देन MP is equal to 1/2 mn. बिकॉज mn टोटल जो लॉन्ग कॉर्ड है वो कितना है? 30 मीटर लॉन्ग कॉर्ड है. अगर हम लोग कंसिडर करते हैं उसका हाफ, दैट इज ये हाफ कंसिडर करते हैं MP, तो कितना हुआ? हाफ ऑफ mn. सो मीन्स कितना हुआ? 50 मीटर. कि ये टोटल 30 है तो ये हाफ हुआ 15 मीटर. Now angle MOP is equal to, अभी ये टोटल D है. सो अगर ये एंगल कंसिडर करते हैं तो ये कितना आएगा? हाफ ऑफ D. तो क्या आएगा? D/2. सो एंगल MOP is equal to D/2. Now sin D/2 is equal to MP अपॉन OM इज इक्वल टू 15 अपॉन R. ये कैसे है? ये है हाइपोटेन्यूस राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, सो ये है हाइपोटेन्यूस, ये है एडजेसेंट साइड, सॉरी अपोजिट साइड, और ये है एडजेसेंट साइड. ओके, अभी हम लोग के पास अपोजिट साइड का वैल्यू है ऑलरेडी. ओके, और हम लोग को अभी क्या करना है? जो वैल्यूज़ है वो हम लोग को पुट करना है. सो ये एंगल है डिग्री ऑफ, तो हम लोग ने क्या किया? साइन D/2 इज इक्वल टू MP. MP मीन्स अपोजिट साइड एंड OM इज अ हाइपोटेन्यूस. ओके, सो MP की वैल्यू हम लोग के पास है अपोजिट साइड की जो है 15 मीटर. ओके, एंड OM रेडियस है. सो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? 15 पुट किया एंड OMR पुट किया. ओके, सो साइन D/2 जो अपोजिट एंगल अगर हम कंसिडर करते तो अपोजिट एंगल, एंगल के सामने क्या आएगा? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स जो D/2 है वो
इज इक्वल टू, ये हम लोग के ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, हाइपोटेन्यूज। सो यहाँ पे सेम हम लोग ने किया है, साइन d/2 इज इक्वल टू अपोजिट साइड जो हम लोग के पास 15 है, ओके, एंड हाइपोटेन्यूज जो है वो r है, वही सेम हम लोग ने यहाँ पे पुट किया है 15/r। अभी हम लोग को रिलेशन चाहिए r एंड d के बीच में, ओके। सो हम लोग ने r को क्या किया, साइड में लेफ्ट हैंड साइड r को लेके गए एंड सब वैल्यूज जो है वो राइट हैंड साइड लेके आ गए, ओके। सो r को एज इट इज़ ऐसे रखा, 15 को भी सेम एज इट इज़ ऐसे रखा, एंड जो साइन d/2 है वो लेफ्ट हैंड साइड से डिनोमिनेटर में लेके आ गए, ओके। सिंप्लीफाई किया है ये टर्म को। बट when d is small or sin d/2 may be assumed approximately equal to d/2 in radian। अभी ये स्मॉल है साइन, तो हम लोग ने डायरेक्टली d/2 इन रेडियन में किया है कंसिडर, बिकॉज स्मॉल वैल्यू है। सो r इज इक्वल टू 15, अभी इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या किया, रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए π/180 हम लोग ने यहाँ पे d/2 को इंटू कर दिया, ओके। सो ये जो वैल्यू है उसको क्या किया, ओनली इंटू π/180 किया, ओके। सो r इज इक्वल टू 15, भी ये क्या हुआ 180 इंटू 2, सो 360 हुआ। सो ये पूरा ऐसे आया 15 इज इक्वल टू d/π अपॉन 360, ओके। सो ये 360 कहाँ पे गया, न्यूमरेटर में गया। सो π/d ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। अगर हम कैल्सी में ये सॉल्व करते हैं, सो r इज इक्वल टू 1718.7 अपॉन d, ओके। अभी ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे करेक्टेड है। r इज इक्वल टू 1718.07। सो ये अगर राउंड ऑफ करते हैं पूरा वैल्यू, तो r की वैल्यू मिलती है 1719 अपॉन d। सो रिलेशन क्या है दोनों के बीच में, r इज इक्वल टू 1719 अपॉन d। ये क्या हुआ, हम लोग का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया है, ओके। सो जब भी हम लोग को रेडियस या डिग्री ऑफ कर्व फाइंड आउट करने बोलते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल डेरिवेशन ही हुआ, ये आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखना है। भी नेक्स्ट देखते हैं मेथड्स ऑफ सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व, ओके। There are so many methods of setting out simple circular curve, by linear method and by instrumental method, okay. First is chain and tape method, that is called as linear method. There are total 4 types. One is a offset from long chord, second one is a successive bisection of arc or Versine method, third one is a offset from the tangent, perpendicular or radial, and offset from the chord produced, okay. Out of these 4 you have to study only one method in your syllabus, that is offset from long chord method, and इसके ऊपर आपको क्या है, न्यूमेरिकल्स भी है offset from long chord method के ऊपर। then next है instrumental method. There are total 3 types. One is a Rankine method of tangential deflection angle. Second one is a two theodolite method, and third one is a tachometric method. And out of 3 you have to study only one method, that is Rankine method. And Rankine method के ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल है। तो ये जो डेरिवेशंस है, ये दोनों मेथड के
जो डेरिवेशन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेती हूँ, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में एक तो पूरा डेरिवेशन भी आता है, ओके, एक्सप्लेन करने के लिए हाउ टू सेट आउट द कर्व विथ लॉन्ग कॉर्ड ऑफसेट मेथड एंड बाय रैंकाइन मेथड। रैंकाइन मेथड का क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा है एग्ज़ाम में, ओके। सो हम लोग फर्स्ट डेरिवेशन देखेंगे एंड देन जो फॉर्मूलेज है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं, बिकॉज डेरिवेशन के लिए पूरा एक 1 लेक्चर लगेगा फॉर 1 मेथड, ओके। थैंक यू एवरीवन। ये तो थियोरेटिकल पार्ट रहा, इसमें कुछ डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, जो डेरिवेशन के पार्ट्स हैं, वहाँ पे आपको डाउट्स आ सकते हैं, तो हम लोग उसका डायरेक्टली मैं आपको सॉल्व करके ही दिखाऊंगी ताकि आपको कुछ डाउट्स ना आ सके। थैंक यू एवरीवन।